میں نے معلومات کی کہ اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اس سے پہلے ایک سیکنڈ بڑا صاحب، ایک سیکنڈ ادھر آجائے. میں ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ میں نے اس سے بات کی ہے کہ بھائی اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. میں اس کی رپورٹ شیئر کر دوں. ہاں تو میں ان سے جی ایک سوال ہوگا. ہمارا جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس سے قوم کی جو تباہی ہو رہی ہے جی اور ہر ایک حکومت آ کر ہمیں دلاسا دے رہی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ قیامت جو آج آئے ہیں ان لوگوں پہ، یہ تو میڈیا شو بنانے کے لیے ہم تو جمع تو نہیں ہوئے ہیں. یہ ذمہ دار لوگوں کے خلاف کام کب ہوگا؟ جی بڑے صاحب کر رہے ہیں، کون کرے گا اس کے خلاف؟ کر رہے ہیں، وزیر اعظم تو نہیں کرتا ہے. کر رہے ہیں بڑے صاحب. ابھی ہو گئی، آ گئی بات، آ گئی. آپ بھی کیمرے آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا. آپ بھی ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے سے مجھ سے بات کرو. آؤ نا مجھ سے بات تو کرو. آؤ نا، میں سن رہا ہوں نا آپ کی بات. آؤ نا ادھر، آؤ مجھ سے بات کرو نا. میں ہوں او بھائی، آؤ نا ادھر بھائی. آپ آئیے نا حضرت. آپ آئے تو صحیح، آپ کی سنیں گے نا ادھر. بڑے صاحب اس سے کچھ نہیں ہو رہا نا. آج تو جائیں، ادھر تو آئیں. اگر آپ کو کوئی بات، ادھر آئیے نا. پھر ادھر سر صبح آپ نے کہا کہ یہ ہاسپٹل 1985 کا بنا ہے، بٹ پورا ہاسپٹل کا بنیاد 1985 میں جو بلاک ہے یہ 2023 میں بنا ہے. بلاک ہے یہ جگہ. بات سیدھی یہ ہے، کہ وہ ہماری بات سن لے نا ایک منٹ. ہماری دیہات میں کہتے ہیں کہ پہلے خیش بات درویش. ہم آزاد میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں کشمیر میں جو ہے وہ بہار یہاں ہے. آج ہمارے گھر میں ہمارے 14 بچے مر گئے. یہاں کوئی پرسنل حال نہیں ہے. یہاں سے تبصرے ہوتے ہیں کیمروں کے سامنے چلے جائے نہیں ہوتا. یار کیا بات کرنی ہے؟ اب وہ واپس آئیں گے، اس سے بڑی جگہ ہے کوئی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ 47 کا مینٹین لے کے آتے ہیں اور یہ آ کے ہمارا علاج کریں گے. یار سورس دیکھنا پڑتا ہے. ناجائز طریقے سے آئی ہوئی کوئی جائز کام نہیں کرتے. کیا بات یہ ناجائز طریقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کوئی جھوٹ کو نہیں بولے. وہ آپ کے سامنے جو پیش کی مجھے آوازیں نہیں آ رہی. اور بھائی میں نہیں جا رہا نا، کہیں نہیں جا رہا. ایک ایک کر کے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، لیکن آپ نے آڈینس کی بات کرتے ہیں، کراچی کی بات کرتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایک کر کے بات کریں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے بینگ اے منسٹر پیش کرتا ہوں. صبح دنیا ٹی وی کی اینکر آپ سے سوال کرتی رہی، آپ متعدد چیزوں میں لائل دکھائی دیے. تو کیا آپ اپنی فوری طور پہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو انفارمیشن ہی نہیں دی گئی بنیادی طور پہ جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی بینگ اے منسٹر؟ نہیں، میرے پاس جو ہے وہ دا مومنٹ جو ہے وہ یہ ہوا ہے. اس کے بعد میرے پاس جتنی انفارمیشن ان کے پاس تھی اتنی انفارمیشن میرے پاس تھی. ٹھیک ہے. ٹی وی کے اوپر بات کرنے کے لیے منسٹر جو ہے وہ ہر وقت تیار نہیں ہوتا. میں ایک طرف سے کال ریسیو کر رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے ٹی وی والوں کی ٹی وی کی کال آ رہی تھی. جب یہ بہت زیادہ ہو گیا تو اسی بیچ میں کالز لے بھی رہا تھا اور ٹی وی کو انٹرویو بھی دے رہا تھا. تو جتنی بھی جو ہے وہ میرے پاس، یہ چھوڑ دیں، یہ جو ہے میرے پاس سارا ریکارڈ ہے وہ میں بتا دوں گا. لیکن یہ وہ جو انفارمیشنز تھی ساری جتنی بھی انفارمیشن اس وقت میرے پاس تھی وہ ساری ان کے پاس تھی، وہ میرے پاس تھی. پیش کر رہے ہیں. احتساب کا مطلب تو استعفیٰ ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، منسٹر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. ایک ہیلتھ رپورٹر سے پوچھ لیجیے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو پیمز کے ہیں، پرائم منسٹر کو شاید ہٹایا جا سکتا ہے، وزیر صحت کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹو ڈائریکٹر اتنے تگڑے ہیں، ہیلتھ رپورٹر سے آپ پوچھیں گے وہ بتائیں گے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا. کون سی گجر سنگھ ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، جب میں نے آپ کو پہلے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جس کی بھی جو بھی ذمہ دار ہوگا، اور میں نے تو اپنے آپ سے شروعات کی نا یہ والی بات، جو بھی ذمہ دار ہوگا
अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा। की बात करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री से चंद किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या है, किसी भी डेवलप कंट्री में होता तो मिनिस्टर मुस्तफ़ी होता, आप मुस्तफ़ी होंगे? आपने अपने आप को जो है वो अभी जितना मैं कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया है। काश कि मैं सारी बातें जो है वो कह सकता, ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हो ना ऐसा पाकिस्तान में वे मैं कह सकता, लेकिन मैं भी अपने सुपीरियर्स का मेरा बॉस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसके ऑर्डर का मैं जो है जो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। मिनिस्टर साहब ये पीपल्स पार्टी आप पे तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप सूबों की बात करते हैं और आप सूबों की बात करते हैं, आपसे 2 अस्पताल नहीं चलाए जा रहे। पीपल्स पार्टी अभी यहाँ से वापस गई है, उन्होंने आप पे सख्त तनकीद किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, ये सूबों वाला मसला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अगर कहना शुरू कर दिया तो अभी ये सारा माहौल कुछ और चल रहा होगा सारा, ठीक है। सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया है, सेक्रेटरी हेल्थ को क्या आपके नॉलेज में था और वो उनको किस बुनियाद पे किया? अगर बाकी सस्पेंड नहीं हुए और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया गया, क्या वज़ीर आज़म ने आपको ऑन बोर्ड लिया? नहीं, मैं उस मीटिंग में था, मैं ऑनलाइन मीटिंग में था और डेफिनेटली जो है वो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है किसी को भी सस्पेंड करना और किसी की सारी चीज़ें, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड किया गया, बट उस मीटिंग में मैं था जिसमें एक मिनट साथ ही जुड़ी वार्ड भी है, क्या वो खाली थी या उसको भी रेस्क्यू किया गया? ये जरा तफसीलात देखिए, उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में 4 जो है वो बच्चे और थे जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। उसके और बराबर बच्चों की ये जो गायनी और ये वार्ड जुड़ी हुई है सारी, जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या प्री मेच्योर पैदा होते हैं, ये उनको यहाँ लाया जाता है। दैट मीन्स के मदर जो है वो उनकी माएँ उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारी थी। उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। बताएं कि पिछले 8 साल से MCI जो इस्लामाबाद इंतजामिया का एक इदारा है, फायर डिजास्टर डेवलपमेंट इदारा, वो 8 साल से आप लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों के फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं ठीक। क्या आपको इस बारे में इल्म था? 2025 में उनका आखिरी नोटिस आया है कि आप लोगों के पास NOC नहीं है फायर के हवाले से, और जो आप लोगों के इक्विपमेंट्स है वो भी सही नहीं, और मॉक एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा रही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। क्या आपको इस मेरे पास जो है वो इस बात का इल्म है कि जो आखिरी जब भी नोटिस आए हैं, इन्होंने उसको जो है वो कंप्लाई करने की पूरी जो है वो कोशिश की। इन्होंने भी 26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर्स जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली पता चलेगा। 2 साल से अस्पताल शिफ्ट नया बना है, नई बिल्डिंग दे दी गई है। सुबह जो आपकी जानिब से पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख इसमें जो है वो फुटफॉल है। आप फिर ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाया था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वज़ीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया है निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। चले थोड़ा 2 महीने कम कर लेंगे। मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी छूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500, ठीक है। ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है, आइडियल है? नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। जिम्मेदारी तो आपकी है। जी, किसकी? आप लोगों की है, अपग्रेड की जिम्मेदारी। अपग्रेड की आपके, हाँ, आपने नहीं करनी, जो है वो इस मुल्क के इदारों ने और डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो एक कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इस 1 साल और 2 महीनों में
कितने बेड्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस्लामाबाद में, कितने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हैं, ये फिर आपको किसी और टाइम पे ये निपट के आपने बात की थी ये नई बिल्डिंग बन गई है, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और जो ऑफिशियल फायर इंसिडेंट की रिपोर्ट है उसमें तो सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, तो उस पर अभी क्या एक्शन है? वेल डेफिनेटली इसको कंक्लूड होना है कहीं, दीज आर द वेरी फ्यू अर्ली आवर्स है ना, अभी पहले मुझे लगता है कि जो अगले 2 से 3 दिनों में इसकी जो है वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि जो आ जानी चाहिए। अच्छा, नई बिल्डिंग बन चुकी थी, 2 साल हो गए, तो पूरा MCH यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वक्त आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ भाई, मैं जा नहीं रहा, आ रहा हूँ। अगर ये वक्त पर शिफ्ट कर लिया जाता तो ये इंसिडेंट ना होता। ये नई बिल्डिंग MCH की बन चुकी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ शिफ्ट कर दी जाती हैं, इसको ऑपरेटिंग कर दिया जाता तो ये आज इंसिडेंट ना होता। दूसरे जो नए सेक्रेटरी हैं उन पे भी बहुत से इल्ज़ाम हैं भाई, जो वो ये तो यहाँ तो बच्चों ने होना ही होना था ना। अगर वो शिफ्ट भी हो जाते तो इन बच्चों ने तो, किसी बच्चे ने तो वहाँ पर उस ICU में किसी बच्चे ने होना ही होना था। ये इंसिडेंट, ये आग ही नहीं लगती तभी बच्चे बचाए जाते, अगर वो आग लगती तो उस जगह पे तो बच्चों ने होना ही होना था वहाँ पे। हाँ भाई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंतज़ामी जो अफसरान हैं, जो ED हैं, जो यहाँ के AD हैं इस सेक्शन के, उनमें भी कुछ मसाइल हैं, और जो AD हैं इस सेक्शन के, उनके खिलाफ इससे कबल कुछ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं। AD या ED की बात? AD जो इस सेक्शन के हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट उसी तरह से दबा गई है सियासी या उनको भी शामिल। सब लोग, ये मैं कह रहा हूँ ना, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। ये इंसानी बच्चों की जानों का मसला है, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। मैंने तो भाई अपनी बात करके बात ख़त्म कर दी ना, इसके बाद कोई नहीं बचता। तो जो जहाँ पर कोताही होगी उसको फिक्स करेंगे। देखें, हादसात रिपीट नहीं होने चाहिए, यही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हादसा हुआ है, उसकी अगर रूट कॉज पे जाके एग्जैक्ट समझ के चीज़ों को करके, ताकि आप अगले हादसे से जो है वो लोगों को और कौम को बचा सकें। कहाँ से लगे? नहीं, ये वीडियो में ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी क्या कहते हैं उसको, कैमरा CCTV फुटेज में वो दिख रही है सारी चीज़। वो इंक्यूबेटर से आग लग नहीं सकती ना, इंक्यूबेटर में कोई भी ऐसी एक शोला, एक स्पार्क निकलकर ज़मीन पे ऐसे गिरा है AC से, और वो बता रहे हैं कि उसके बाद 1 मिनट का टाइम है। 6:38 पे वो स्पार्क में हुआ है, और 6:39 पे पूरे कमरे में जो है वो नहीं, ऐसा है कि देखो, ये जो आप भाई है, सुनो, ऐसा है कि एक दरवाज़ा, जहाँ पर जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ पर एक गार्ड खड़ा करके 24 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी है, और वो दरवाज़ा खुद से खोल बंद करता है। दैट इज़ मैन, वो सिक्योरिटी जो दूसरे वाला दरवाज़ा है। क्योंकि इसी जगह से नौमौलूद बच्चों के चोरी होने के वाक़यात हुए इससे पहले, चंद सालों पहले। यहाँ से बच्चे अगवा हो गए आप कह लें, या चोरी हो गए। उस वाक़े के बाद से वहाँ पर उस गेट में, अब ये भी दुनिया में कहीं और ये बात नहीं होगी ना भाई कि बच्चे जो है वो नौमौलूद बच्चे अस्पताल से चोरी हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ है भाई मसला ये वाला। तो ये बच्चे चोरी हुए थे कई साल पहले, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उस दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा करके उसको जो है वो लोगों के लिए, सबको फ्री फॉर ऑल नहीं था, चेक करके लोगों को इन एंड आउट करते हैं। ये सिर्फ इतनी अच्छा, 6 जुलाई को एक वाक़या ऑलरेडी आग का हो चुका है। 6 जुलाई को पिम्स के अंदर ऑलरेडी आग का एक वाक़या पेश आ चुका है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आपसे शेयर की गई है। वो AD साहब से पूछें, आपके पास खड़े नहीं, मेरे पास जो है मैंने मालूमात की कि इससे पहले कोई ऐसा वाक़या पेश आया है। इससे पहले एक सेकंड बड़ा साहब, एक सेकंड इधर आ जाइए। मैं एक सेकंड मैं जो है वो मैंने इससे बात की है कि भाई इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है। मैं उसकी रिपोर्ट शेयर कर देता हूं। हाँ, तो मैं इनसे जी एक सवाल होगा और हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, इससे कौम की जो तबाही हो रही है जी, और हर एक हुकूमत आकर हमें दलासा दे रही है। जी ठीक है। ये क़यामत जो आज आए हैं इन लोगों पे, ये तो मीडिया शो बनाने के लिए हम तो जमन तो नहीं हुए हैं। ये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा? जी बड़े साहब कर रहे हैं, कौन करेगा इसके खिलाफ? कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करता है। कर रहे हैं बड़े साहब। अभी हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात तो करो। आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, मैं जा थोड़ी। आओ ना इधर, आओ मुझसे बात करो ना, मैं हूँ। ओ भाई आओ ना इधर, भाई आप आइए ना हजरत।
آپ بھائی تو صحیح آپ کی سنیں گے نا ادھر. بڑے صاحب اس سے کچھ نہیں ہو رہا نا. آج تو جائیں ادھر تو آئیں. اگر آپ کو کوئی بات ادھر آئیے نا پھر ادھر سر صبح آپ نے کہا کہ ہاسپٹل 1985 کا بنا ہے بٹ پورا ہاسپٹل کا بنیاد 1985 میں جو بلاک ہے یہ 2023 میں بنا ہے بلاک ہے یہ جگہ یار بات سیدھی یہ ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ وہ ہماری بات سن لے نا ایک منٹ. ہماری اتحاد میں کہتے ہیں کہ پہلے خیش بات درویش ہم آزاد میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں کشمیر میں جو ہے آج یہاں ہے آج ہمارے گھر میں ہمارے 14 بچے مر گئے. یہاں کوئی پرسنل حال نہیں ہے. یہاں صرف تبصرے ہوتے ہیں کیمروں کے سامنے چلے جائے نہیں ہوتا. یار کیا بات کرنی ہے. اب وہ واپس آئیں گے اس سے بڑی جگہ ہے کوئی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ 47 کا مینٹین لے کے آتے ہیں اور یہ آگے ہمارا علاج کریں گے. یار سورس دیکھنا پڑتا ہے. ناجائز طریقے سے آئی کوئی جانچ کام نہیں کرتی. کیا بات یہ ناجائز طریقے سے آئے کوئی جھوٹ کو نہیں. ایسے تماشا لگا رکھا ہے ہم نے. یہ ناجائز ہے. یہ 47 کی اس سے کوئی بات نہیں. یہ فضول ہے. اسلام آباد کی سب سے بڑا ادارہ ہے. اس میں ہمارے 14 بچے مرتے ہیں. کسی کی کوئی خیالات کوئی پوچھا ہی نہیں. اور یہاں کے نبے بھیان لگا کے نبے تبصرے